Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to grade 10 chemistry class. Today we are going to discuss chapter Importance of Equilibrium Constant Kc. This topic is mentioned in your book in chapter number 9 on page number 12 and 13. Now first, what are the main importance of equilibrium constant? The main importance of equilibrium constants are number 1, predicting direction of reactions, and number 2, predicting extent of a reaction. Now what is the meaning of predicting direction of reactions? Direction of reactions can be predicted by the value or numerical value of Kc, and this value normally refers to the equilibrium expression, that is equilibrium constant expression. If you know the chemical equilibrium expression, then we have to insert only the concentration of the product and the reactant in our expression, and then we can able to find out the direction of reactions. Now another important point that always you have to use the reversible reaction in this case, because the irreversible reactions are not applicable for this phenomena or for finding the direction of reaction. Next point is time factor, that is represented here by small t. Why I am writing the time factor here? Because the time factor is very important, because we have to get out the concentration of your reactant mixture, that is product and reactant, at any time, and we will suppose it that at that time we have taken out the concentration out of your reactions, and then we have to find out the next value, that is inserting the value in the chemical equilibrium expression and find out the reaction quotient, that is the next value, and it is represented as Qc. Now basically most of you or most students are having problem in reaction mixture, that what is a reaction mixture. So always remember that reaction mixture are those participants which are actually involved in the as in the form of product or reactant. That is, the reactants and products are basically both called reaction mixture. So don't get confused in this case. Now another thing which we have to discuss in all this topic or importances are generalization or possibilities about the direction of the reaction. That is, what are those three possibilities in which the reaction can be directed toward. Second part or second importance of Kc is predicting extent of a reaction, and for this purpose you must know what is extent. Extent means the limit, that how far a reaction proceed and how much amount of reactants are converted into products. So this can be find out in predicting extent of a reaction, that is the second importance of Kc. In extent of a reaction, we can also find out the possibilities or generalization of predicting extent of reactions. That is, again, we have three possibilities here, and we have to find out that how much amount or how far a reaction proceeds. It also indicates to which extent reactions are converted into products. So this is the short introduction about the importance of equilibrium constant Kc. Now we will start first with the predicting direction of reaction. Now the first importance of Kc is predicting direction of reaction, जिसमें हम रिएक्शन की डायरेक्शन यानी सिम्प मालूम करते हैं कि Kc किस तरह हमें किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में. सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए किसी भी मोमेंट पर आप अपने जो रिएक्शन मिक्सचर्स होते हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में. फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को फॉलो कीजिए. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि आप फेमिलियर हैं, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है. हाइड्रोजन plus iodine gas in a reversible reaction to produce 2 moles of hydrogen iodide. So in this reversible reaction we can find that these are the reactants. ये क्या है? ये reactant sides है हमारी,
और ये दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाता है राइट पे, ये हमारा प्रोडक्ट है। And in any reversible reaction we have two parts. One which goes from your left to right is called forward reaction, and from right to left it is called reverse reaction. ये आपका reverse reaction कहलाता है. So similarly we have to find out the standard value for this reaction, and the standard value for this reaction is Kc is equals to 57, and this numerical value was taken at a particular temperature, that is at certain conditions, and this condition of the temperature is 700 Kelvin. Now, what are we going to do? Okay, consider the gaseous reaction of hydrogen with iodine, and we withdraw the samples from the reaction mixture and determine the concentration of hydrogen, iodine as well as hydrogen iodide. हमने करना ही होगा कि हमने किसी भी वक्त जहाँ पर हम देखेंगे हमारा अभी इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट या हमारा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हमें अचीव नहीं हुआ, हमने अपनी केसी की स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दी 57। अब हम अपने तमाम जो मिक्सचर हमारा ये जो रिएक्शन मिक्सचर इसमें से हमने अपना कुछ अमाउंट में सैंपल जो है वो निकाल लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को नोट कर लेना है कि हमने इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले वो अपना जो जितना भी रिएक्शन सैंपल था या मिक्सचर था या कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमने वहाँ पर निकाल ली। अब हमने वहाँ पर अपनी इस केसी वैल्यू को जो है वो एडजस्ट करना है कि सपोज़ कि हमने जहाँ पर ये सैम्पल्स में से जो भी अपना जो है वो कॉन्सेंट्रेशन निकाला तो हमारी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बननी चाहिए। सो सपोज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कुछ इस तरह से थे कि हमने जब हमारा जो केसी की वैल्यू जो है वो आनी थी, फॉर एग्जांपल हमारे गिवन टाइम है, जैसे हमने मॉर्निंग में ये एक्सपेरिमेंट किया 9 पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आना चाहिए था, लेकिन हमने उससे पहले यानी 8:45 यानी 8:45 पर ही हमने अपने रिएक्शन जो मिक्सचर थे उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालना शुरू कर दी। अब सपोज़ कि उस टाइम पर जब हमने रिएक्शन मिक्सचर को अपने निकाला तो वो कितना था, हाइड्रोजन के लिए ये तकरीबन हमारे पास 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब था। इसी तरह हाइड्रोजन के बाद आयोडीन की बारी आती है, और आयोडीन के लिए कितना है, ये हमारे पास जो एंटर हम करेंगे 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड हमारा रिएक्शन मिक्सचर का पार्ट है वो है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमने इस्तेमाल किए थे, जिससे हमारा जो वैल्यू आ रही है वो है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन आ गई हैं डिफरेंट रिएक्शन मिक्सचर्स की। अब सपोज करना है आपने कि आपने जो अपने रिएक्शन जो कांस्टेंट का जो आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाया है उसमें आपने केसी की वैल्यू में जो कि इसको इंसर्ट करना है। अब केसी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है आपको कि जब हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन यानी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, नाउ अब आपने इस वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लेना है, और अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमने अपनी तमाम इन वैल्यूज़ को अपनी उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में पुट करना है। हमने अपनी एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज करके और कंपैरेबल करना है किससे, क्यूसी से। व्हाट इज़ क्यूसी? इट इज़ अ रिएक्शन कोशेंट। क्यूसी किसे कहा जाता है, जैसे कि अभी मैं बता भी चुकी थी अपने इंट्रोडक्शन में, क्यूसी मीन्स रिएक्शन, या जिसे आप सिंपली कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब होता क्या है इसमें कि जब आप क्यूसी की वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखते हैं अपना प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। लगता है कि आपने केसी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने टाइम फैक्टर को भी इंक्लूड करना है, एंड टाइम आपने यहाँ पर छोटा सा टी लगा देना है अपने प्रोडक्ट के साथ भी और रिएक्टेंट के साथ भी। तो ये आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनती है वो क्यूसी है, जिसको आपने कंपेयर करना है केसी के साथ। क्यूसी से स्टार्ट करते हुए अब हम अपने केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में वो वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे जो मैंने आपको तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से बताई। सो टाइम यानी सबस्क्रिप्ट टी जो मैंने आपको बताया था कि उसको जब आप अपने कॉन्सेंट्रेशन सिंबल्स के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये इसके 2 मोल्स हैं तो इसकी पावर में लिख दिए जाएंगे। एंड द रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है,
और साथ साथ है आयोडीन गैस। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें सिंपली उन वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे जो हमने इन बिटवीन रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से जो पहले हमने वैल्यूज़ ली थी वो हम इसमें सिर्फ पुट कर देंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू हमारे पास थी 0.40 और हम इसको ले लेंगे ब्रैकेट के बाद पावर 2 के साथ यानी स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो यहाँ पर 2 मोल्स होते हैं वो हमारी कोफिशिएंट के तौर पे पावर में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यूज थी जो कि 0.10 और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 0.20 फॉर आयोडीन। और अलॉन्ग विद इट वी हैव ऑल्सो राइट कि हमारे पास क्या लिखा हुआ था यहाँ पर टाइम सबस्क्रिप्ट, जिसे हम लिखते हैं अपने कंसंट्रेशन सिंबल्स के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जब रिएक्शन मिक्सचर में से ये जितनी कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती हैं ये हम इक्विलिब्रियम अपनी उस पर नहीं कर रहे, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आकर अपनी वैल्यूज़ को हमने नहीं एक्सट्रैक्ट किया, हमने विड्रॉ नहीं किया, हमने उस वक्त नहीं निकाला जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका था। हम किसी भी बात इक्विलिब्रियम से पहले भी अपना जो है ये वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। अब हमने सिंपली इसको क्या किया, हमने वैल्यूज़ को कहाँ इंसर्ट किया, अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो इस वक्त हमारी क्या है QC है। अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं QC, और ये क्या कहलाती है रिएक्शन कोशेंट, क्योंकि हमने रिएक्शन के दरमियान में ही अपनी इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को लिया है और उसको अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी KC 57 से हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। सपोज के आंसर कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आती है वैल्यू 8, यानी हमारे पास जो QC की वैल्यू आ रही है वो 8 है, और इस वैल्यू को जब हम 57 से कंपेयर कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC जो है वो छोटी है आपकी KC की वैल्यू 57 से। तो रिएक्शन की आपने इस वक्त डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, रिवर्स की तरफ जा रहा है, या इक्वलाइज हो गया है। तो इक्वलाइज नहीं हो सकता क्योंकि हमारी वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है, और जब ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि अगर QC की वैल्यू आपकी छोटी हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, KC की वैल्यू से, यानी 8 इज़ लेस देन नॉर्मली किस वैल्यू से 57 हम लिख देते हैं 57 से। तो जब आपके पास ये आंसर आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और सेकंड थिंग कि रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन की जो टाइप है वो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है। यानी क्या मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये रिवर्स क्यों नहीं है, इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? रीज़न ये है कि इस वक्त आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं बन रही, यानी आपके हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार कम बन रही है और आपका रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट रिवर्स डायरेक्शन। तो जब भी हमेशा ये याद रखिएगा कि QC की वैल्यू अगर KC से कम आ रही है, यानी आपकी इससे स्टैंडर्ड वैल्यू से वैल्यू कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इसका रीज़न ये है कि इनिशियली जैसे हम पढ़ते भी रहे थे कि इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज एंड नेग्लिजिबल रेट आपको नज़र आएगा रिवर्स रिएक्शन का। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप इस QC की वैल्यू को कहीं पर आप इसको अप्लाई करें, इसको यूज़फुल बनाने की कोशिश करें, तो यही QC की वैल्यू कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल होती है KC से, जिससे हम KC और QC की वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। So this is a simple example which you have to include in the predicting direction of reaction. Now we'll talk about the generalization or possibilities of this KC value, which indicates either you can compare it with the QC and then we'll find out the direction of reactions further. Now we'll talk about the possibilities in the direction of reaction. किसी भी रिएक्शन की सिम्ट मालूम करने के लिए जैसे कि हमने कहा कि हमेशा QC की वैल्यू ली जाती है रिएक्शन कोशेंट को, और उसको कंपेयर किया जाता है KC की वैल्यू से कि नॉर्मली इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कि हम KC की वैल्यू को स्टैंडर्ड बना लेते हैं और अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो इससे कंपेयर करते हैं, जिससे हमें फौरी तौर पे रिएक्शन की सिम्ट का अंदाज़ा हो जाता है। सो व्हाट आर द बेसिक
possibilities, what are the generalization which are normally about the direction of reaction. तो हमेशा याद रखिएगा कि एक तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी नंबर 1 कि अगर तीन कंडीशन हमारे सामने आती हैं कि इफ़ QC वैल्यू इज लेस देन KC वैल्यू, देन दिस रिएक्शन इंडिकेट, दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट कि ये वैल्यूज़ हमें क्या इंडिकेट करेंगी कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, रिएक्शन की स्ट्रेंथ क्या है. रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट से क्या हो रहा है कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा माइल है, ज़्यादा हो रहा है. और इस तरह के रिएक्शंस को जिसमें लेफ्ट से राइट आपकी डायरेक्शन जा रही है कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. रिएक्शन आपका कौन सा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि QC की वैल्यू हमारी 8 आई थी, दैट इज लेस देन KC की वैल्यू थी हमारी 57. सो इन दिस केस वी कैन फाइंड आउट दैट द रिएक्शन इज फॉरवर्ड बिकॉज इट गोज फ्रॉम योर लेफ्ट साइड टू राइट साइड. अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द direction of reaction is QC if the QC value is greater than KC. So in this case, what will be the direction of reaction? What will be the reaction called? So it will be called reverse reaction. Reverse reaction को reverse reaction इसलिए कहा जा रहा है. Now this time again we are checking about the reaction of that hydrogen plus iodine. हमने देखा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स पार्ट होते हैं. रिवर्स दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ये रिएक्शन मिलकर बनता है और इसमें 2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ था. अब इस रिएक्शन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा फोकस करें तो हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि QC की वैल्यू अगर KC से कम है तो रिएक्शन जो है वो आपके लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहा है. ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड. तो रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ है? ये फॉरवर्ड की तरफ है क्योंकि हमने इसको एक सिंगल एरो से ऐसे जाहिर किया हुआ है. ये आपका ऊपर का जो एरो हम इंडिकेट कर रहे हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए. लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम कर देते हैं कि ये वैल्यू हमारी 63 है, यानी QC वैल्यू 63 है एंड दैट इज एक्चुअली ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द KC. व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम, बिल्कुल आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे. अब डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो आपके राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे आएगी, जो इंडिकेट कर रही है कि ऐसा रिएक्शन जो कि आपके राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है वो आपका रिवर्स रिएक्शन है, और जो आपकी साइड यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है. तो इससे हमें 2 पॉसिबिलिटीज हमारी सामने आ गई. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पॉसिबिलिटीज. How we'll compare the both values of QC and KC in this case. So only the third case is QC is equals to KC. Sometimes this also happens कि आप ये भी कह सकते हैं कि बाद दफ़ा ऐसा भी आपके होता है कि किसी भी टाइम फैक्टर में या किसी भी टाइम जब आप अपने रिएक्शन मिक्सचर को विड्रॉ कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि उस वक्त आपका इक्विलिब्रियम सेटअप बन चुका होता है. तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद अगर आपकी वैल्यू 57 इक्वल्स टू 57 यानी दोनों वैल्यूज QC एंड KC बराबर आ जाए इस तरह, तो ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आपका जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस में इक्वली जो है वो यूँ समझे कि मूव कर रहा है. कभी यूँ आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शंस में जा रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहे हैं. तो इस तरह के केस में जिसमें QC बराबर होता है KC के, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ रिएक्शंस, दोनों रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान होते हैं वो इक्वल रेट पे. इक्वल रेट का क्या मतलब है? बराबर की रफ्तार. रिएक्शन दोनों जो है वो एट इक्वल रेट्स पर आ जाते हैं. एट इक्वल रेट्स का मतलब बेटा ये है कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, यानी जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा होता है. तो दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती है. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब आपका जो एक स्टैब्लिशमेंट हुई है वो किसकी हुई है कि अब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, यानी तवाज़न की हालत में आ गया है, बिल्कुल बैलेंस हो गया है, और इस बैलेंस को फिर आप नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो इस तरीके से आप अपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. Next importance of equilibrium constant Kc is to find out the extent of a reaction, that is the predicting extent of reactions.
So as we know, the numerical value of Kc predicts the extent of reaction 2. And what is the meaning of extent? इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको extent के meaning का पता होना चाहिए कि what is the meaning of extent. Basically, extent means that how far a reaction proceed before establishing equilibrium state. In the similar manner, extent also shows you that how much reactants are converted into product. इसकी मिसाल ऐसे दीजिए, जब आपको बहुत भूख लग रही होती है तो आप फ़ौरन किचन में या मदर से पूछते हैं कि खाना कब बनेगा. जब आपको ये क्वेश्चन होता है ना, खाना कब बनेगा, तो ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि आपको इस वक्त भूख लगी है और आपको इस वक्त फौरी तौर पे किसी खाने की ज़रूरत है. तो मदर फिर आपको बताती है कि इतना टाइम लगेगा, अभी जो है वो रिएक्शन जो है वो हो रहा है, यानी कुकिंग हो रही है, और इतने हमें रिएक्टेंट्स जो है वो दरकार है, हमें इतने रिएक्टेंट से उतना हमने खाना यानी प्रोडक्ट तैयार करना है. तो ये सारी चीज़ें हमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि जिस तरह से कुकिंग के वक्त यानी खाना पकाते वक्त एक पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है कि खाने के लिए मटेरियल को जमा किया जाता है, उसमें आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी बन रहा है, वो सारे आपके रिएक्टेंट मिक्सचर हो जाते हैं. तो वो रिएक्टेंट मिक्सचर जब आप किसी हांडी में या अपने कुकिंग जो भी आपका पॉट होता है उसमें पका रहे होते हैं, तो वो आपका एक तरीके से मिक्सचर जो है वो पक रहा होता है, और पकने के बाद जो आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो आपका खाना होता है. तो बिल्कुल उसी तरीके से एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन क्या है? एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन में भी हम यही प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ, यानी खाना कितना चाहिए और कितना वो बन गया है. और साथ साथ हम ये देखेंगे कि वो आखिरी हद क्या है जहाँ पर हम जाकर देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हमारी जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पहुँचेगी और हमारा वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमने अपने पिछली सिग्निफिकेंस में नोट किया था कि व्हाट आर दीज पॉसिबिलिटीज़. ये भी वही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तकरीबन 3, जिनको आपने यहाँ पर पढ़ना है. सो व्हाट आर द जनरल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? सो नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. पहले हमारे पास क्या आ रही है? लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए आ रही है 2.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 22, यानी इतनी बड़ी 10 की पावर के साथ हमारी इतनी बड़ी जो है वो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है. तो इस सूरत में रिएक्शन जो है उसकी एक्सटेंट क्या होगी? तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc हमें ये बताती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इस वक्त अगर कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो वो कौन सी है? वो आपके प्रोडक्ट्स हैं, और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर है. कहने का मकसद ये है कि जब मदर ने खाना बनाया तो जितनी चीज़ें उनको दरकार थी वो उन्होंने सब की सब जो है वो खाने पकाते हुए डाल दी हैं. अब रिएक्टेंट ख़त्म हो चुके हैं, मटेरियल अब उनके पास नहीं है, जो कुछ पक रहा है बस वो उस पॉट के अंदर पक रहा है, और पकने के बाद जो आपको प्रोडक्ट यानी जो चीज़ मिल रही खाने के लिए वो आपका प्रोडक्ट है. तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स ख़त्म हो चुके हैं और प्रोडक्ट यानी खाना इस वक्त तैयार हो चुका है. तो इसी तरीके से लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट ये करेगी कि आपके किसी भी पोजीशन पर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आपके तमाम के तमाम प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं. इस एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर होगी. 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी ये क्या 2 कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देते हैं ताकि वो रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. सो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये आपका कैसा रिएक्शन है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबाइन होकर कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन बना रहा है, और इसमें आपका प्रोडक्ट क्या है? 2 moles of carbon dioxide, and this reaction is actually achieved at the value of Kc 2.2 multiply 10 की पावर आपके पास है 22, which is a large value of Kc. So at this point we can say that almost all products are being formed, यानी ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो बन चुके हैं. और प्रोडक्ट क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, जबकि हमारे इन रिएक्टेंट मिक्सचर्स जिनको हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं ये निग्लिजिबल हैं, ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूटिलाइज हो चुके हैं. तो ये क्या है? हमारे बिल्कुल निग्लिजिबल हैं. निग्लिजिबल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर. ये क्लियर होगी बात बेटा आपको? इन दिस केस
व्हाट हैपन्स टू द रिएक्शन, रिएक्शन की क्या कंडीशन है, रिएक्शन ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो गया है, यानी कंप्लीशन की तरफ आ गया है। अब इस रिएक्शन में मजीद जो है वो कोई ऐसी गुंजाइश या कैपेसिटी नहीं है। सो द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। और इस रिएक्शन की बेहतरीन मिसाल आपके सामने है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज किया है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शक्ल में आपके सामने एंड फॉर्म्स carbon dioxide, and this condition or the condition required for this reaction is at 1000 Kelvin, यानी इतने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन अगर आपने प्रोवाइड किया तो होगा, अदरवाइज आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं कहलाएगा। Next possibility of finding out the extent of a reaction is number 2, second case, second possibility, which is basically called small numerical वैल्यू ऑफ केसी। पहले हमारे पास क्या थी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी थी, और हम अब सेकंड हेडिंग अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ बना रहे हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। व्हाट डज दिस पॉइंट और दिस पॉसिबिलिटी और जनरलाइजेशन इंडिकेट कि अगर हमारी केसी वैल्यू किसी भी रिएक्शन में बहुत कम है, मिसाल के तौर पे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे केसी वैल्यू हमारे पास इस वक्त है कि 3.0 मल्टीप्लाई 10 to the power -9, यानी 10 की पावर माइनस में चली गई, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ये वैल्यू हमारी बहुत छोटी है। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उस सूरत में रिएक्शन की क्या एक्सटेंट होती है, रिएक्शन किस हद तक जो है वो मुकम्मल होता है, नामुकम्मल होता है, ये हमें इंडिकेट करना है। सो इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ बेटा कि फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ले लिया यहाँ पर 2 moles of ammonia in a reversible reaction to form nitrogen gas plus 3 moles of hydrogen gas at about this Kc value. So what actually happens during this reaction? क्या हो रहा है इस रिएक्शन में कि हम देख रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उस वक्त हमारा जो ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, हमने देखा कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब यहाँ पर नेग्लिजिबल रह गया। क्या मतलब हुआ कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हुई है उसमें रिएक्टेंट इस वक्त ज़्यादा है, रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि खाना इस वक्त तैयारी के मराइल में रिएक्टेंट्स इस वक्त ज़्यादा मौजूद हैं, खाना अभी बना नहीं है, यानी आपके प्रोडक्ट अभी आपको मिला नहीं है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट आपका अभी तैयार होने की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी आपको मुकम्मल तौर पे वो तैयार नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहने का मकसद क्या हुआ कि किसकी मिकदार ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट इस वक्त ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स आपके पास इस वक्त कम बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स इस दफ़ा नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर रिएक्टेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन प्रोडक्ट ना होने के बराबर हैं, तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो आपके चले जाते हैं फॉर नेवर गो टू कंप्लीशन, नेवर गो टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन कभी भी मुकम्मल होने की तरफ नहीं जाते जहाँ पर आपके रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट्स कम हो। तो इस तरह की जो कंडीशन है ज़्यादातर आपने देखी होगी कहाँ पर, डीकम्पोजिशन के केस में। और यहाँ पर डीकम्पोजिशन का रिएक्शन आपके सामने है जिसमें अमोनिया टूटने के बाद, डीकम्पोज होने के बाद बना रहा है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। जिस वक्त अमोनिया की मिकदार बहुत ज़्यादा है जबकि बनने वाली जो गैसेस हैं उनकी मिकदार बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, जिसको हम नेग्लिजिबल कहेंगे। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड पॉसिबिलिटी दैट इंडिकेट स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. So the reaction never goes to completion. Third possibility of predicting extent of reaction now. Third possibility or generalization. In this we can say our heading will be moderate value of Kc. You can also write according to the book. Book के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं जहाँ पर मौजूद है न्यूमेरिकल वैल्यू Kc is neither small nor large, यानी वहाँ पर ना तो वो छोटी है और ना ही बड़ी है, तो कैसी वैल्यू है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या है, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। तो सच रिएक्शंस हैव
कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं N2O4 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म 2NO2 and numerical value of Kc at in this sort of reaction is 0.211 which is the moderate one। ना तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ना हमने ये लिखा कि 10 की पावर 22 है, ना हमने लिखा कि 10 की पावर -9 है, यानी हमारे पास ऐसा कोई 10 की पावर मौजूद नहीं है। अगर माइनस में पावर है तो वैल्यू बहुत छोटी है। 10 की पावर 22 इससे यानी प्लस में आपकी वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू आपकी बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका वैल्यू एक डेसिमल फॉर्म में 0.211 आ गई, जो कि इंडिकेट कर रही है कि ना वैल्यू छोटी है और ना ही वैल्यू आपकी लार्ज है या बड़ी है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है जिसमें वैल्यू आपके सामने है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जितनी अमाउंट में हमारा रिएक्टेंट है उतनी ही अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट भी मौजूद है, यानी जितना हमने गुड़ डाला है यानी जितना गुड़ होगा उतना ही मिठास हमें हासिल हो रही है। हमने यहाँ पर अनबैलेंसिंग सीन नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे कि रिएक्टेंट कम है या प्रोडक्ट कम है। हमने देखा कि दोनों तरफ दोनों चीज़ें बराबर है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट के बराबर है और प्रोडक्ट भी हमारा रिएक्टेंट के बराबर है। ये किस तरह का रिएक्शन है जो कि हमें ऊपर नज़र आ रहा है। तो N2O4 हमारा कैसा रिएक्शन होगा, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है और हमारी जो NO2 की कॉम्बिनेशन है किसमें टू फॉर्म N2O4, वो दोनों कंपेरेबल रेट पर आ गए हैं। अब ये जो रिएक्शन है हमारा दोनों साइड पर एक इक्वली जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, कभी फॉरवर्ड में जा रहा है कभी रिवर्स में जा रहा है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारा एक्चुअली डीकम्पोजिशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है, जबकि हमारा रिवर्स रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4। तो ये दोनों रिएक्शन जो कि एक दूसरे के कंपैरेबल आ गए हैं यानी एक दूसरे से बराबर आ गए हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का होना ये इंडिकेट करता है कि नाउ द रिएक्शन आर एट इक्वल रेट एंड मूविंग टुवर्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन एज वेल। सो स्टूडेंट्स, this is the end of today's lesson and the end of the chapter as well. You have to find out the answer of some question. If you have any difficulty you can ask from me, as well as you have to do some exercise questions starting from the multiple choice questions as well. So I think today's lesson is understood to all of you. आई होप यू विल बी फाइन, अच्छे होंगे आप और अच्छे रहेंगे। अपने आप को महफूज रखिए, उस बीमारी से भी महफूज रखें, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए और कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ने की आदत डालिए। तो यहाँ से मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।